अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। तेलंगाना की काबीना में 10 वज़ीरा शामिल, गवर्नर ने दिलाया हलफ, 5 नए चेहरे शामिल, केटीआर और हरीश राव शामिल नहीं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने और रियासत में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड्स दिलाने कमीशन सिफारिश करे, वज़ीर आला की नुमाइंदगी। रियासत की मुतवाज़िन तरक्की जरूरी, देही इलाकों को तरक्की दी जाए, तेलंगाना तेजी से तरक्की करने वाली रियासत, फाइनेंस कमीशन के सदरनशीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। काबीना में जगह ना मिलने पर हर्ष नाराज नहीं, टीआरएस के सिपाही के तौर पर काम करेंगे, सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा बेबुनियाद। और मुख्तलिफ सड़क हादसात में 2 अफराद बरसरे मौका हलाक, 2 शदीद जख्मी। तेलंगाना की काबीना में 10 वज़ीरा के साथ तौसी की गई। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपनी काबीना में 10 वज़ीरा को शामिल किया। ई राजेंद्र, ई दयाकर राव, के ईश्वर, इंदिरा किरण रेड्डी, एस निरंजन रेड्डी, जगदीश्वर रेड्डी, टी श्रीनिवास यादव, मल्ला रेड्डी, श्रीनिवास गौड़ और प्रशांत रेड्डी को काबीना में शामिल किया गया है। राजभवन में गवर्नर ESL नरसिम्हन ने नए वज़ीरा को हलफ दिलाया। इस मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, TRS पार्टी के अरकान मुक़न्नना भी मौजूद थे। अब TRS हुकूमत की काबीना में वज़ीर आला के बशमूल 12 वज़ीरा शामिल हुए हैं। काबीना में इस बार भी किसी खातून को नुमाइंदगी नहीं दी गई। इससे पहले इंतखाबात में कामयाबी के बाद 13 दिसंबर को वज़ीर आला KCR के साथ मोहम्मद महमूद अली ने हलफ लिया था, जिन्हें वज़ारत दाखिला का कलमदान दिया गया था। कहा जा रहा है कि लोकसभा इंतखाबात के बाद काबीना में एक बार फिर तौसी की जाएगी। काबीनी अरकान की हलफ बर्दारी के बाद तेलंगाना के गवर्नर ESL नरसिम्हन, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और नए वज़ीरा ने राजभवन के अहाते में तस्वीर खिंचवाई। इस बार काबीना में 5 नए चेहरों को शामिल किया गया है, जबकि साबिक वज़ीरा में के तारक रामाराव, हरीश राव को इस बार मौका नहीं दिया गया। पार्टी राय के मुताबिक इन दोनों को पार्लिमानी इंतखाबात की जिम्मेदारी दी जाएगी। సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నా। కొప్పుల ఈశ్వర్ అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విజేత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో, అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ, పక్షపాతం కానీ, రాగ ద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని, శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। అన్నే నేను కొప్పుల ఈశ్వర్ అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో, అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ, పక్షపాతం కానీ, రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని, శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। అన్నే నేను ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా
నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. వి శ్రీనివాస్ గౌడ్ అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసము విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ పక్షపాతం కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. అన్నే నేను వి శ్రీనివాస్ గౌడ్ అని నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ పక్షపాతం కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. అన్నే నేను వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. काबीना की तौसीकी की तकरीब का कांग्रेस पार्टी ने बाइकआउट किया है। रियासती हुकूमत की तरफ से काबीना तकरीब के लिए 441 अफराद को मदऊ किया गया था, जिसमें अपोजिशन लीडर भट्टी विक्रमार्का के अलावा तमाम अरकान मुक़न्नना को भी मदऊ किया गया था। कौंसिल के सदनशीन असेंबली स्पीकर 32 IAS ओहदेदार, 44 IPS ओहदेदार और 4 IFS ओहदेदार, मेयर, डिप्टी मेयर, एडवोकेट जनरल के अलावा वजारत में शामिल किए जाने वाले कायदीन के अफराद ख़ानदान को मदऊ किया गया था। मजलिस की तरफ से रुकन कौंसिल सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने शिरकत की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 15वीं फाइनेंस कमीशन से कहा है कि वो तेलंगाना में इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने मरकज़ से फ़राग़ दिलाना इमदाद की सिफारिश करें। इन्होंने दस्तूर में इख्तियारात की मुश्तरका फहरिस्त को ख़त्म करने पर भी जोर दिया। कमीशन के सामने रियासत का मुकदमा पेश करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि आबपाशी, बरक़ी, ज़राअत, समाजी बहबूद और मुहासिल की वसूली में रियासत की कारकर्दगी नुमाया है। 2014 में तश्कील पाई इस नई रियासत को कई एक मसाइल बिलखुसूस मरकज़ से मालियाती अलॉटमेंट का सामना है। इन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में पानी की वाफिर मिक़दार होने के बावजूद ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा बंजर है। इन्होंने दरियाओं के पानी की तकसीम को मौसर बनाने, आबी वसाइल के बेहतर इस्तेमाल के लिए कमीशन को अपनी तजावीज़ पेश की। इन्होंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को बैन रियासती आबी मुफाहमत की एक मिसाल करार दिया। वसाइल की कमी का शिकार कई छोटे मुमालिक की तरक्की का जिक्र करते हुए इन्होंने कहा कि ये मुमालिक अब हिंदुस्तान से बेहतर कारकर्दगी दिखा रहे हैं। चीन जो 40 साल पहले तक मालियाती तौर पर हिंदुस्तान से कमतर था, अब इसकी घरेलू पैदावार की शरह में कई गुना इजाफा हुआ है। इन्होंने सरकारी कमीशन की सिफारिशात को रूबे अमल लाने पर जोर दिया है। किसानों के लिए रईतु बंधु स्कीम, बीमा स्कीम, समाजी बहबूद के मुख्तलिफ कामों का वज़ीर आला ने जिक्र किया और मरकज़ से रियासत को दरकार फंड्स दिलाने कमीशन को अपना रसूख इस्तेमाल करने की वकालत की। The expenditure on flagship programs of the center in a state is a minuscule of the total expenditure incurred by a state in a year. I request the commission to incentivize the states in the implementation of their own flagship programs, which are much better designed than the one-size-fits
all programs of the center, most of which are in the state subjects. Another performance-based incentive relates to the control or lack of control incurring expenditure on populist measures. There are no objective criteria to categorize schemes into populist and non-populist. India being so vast and diverse, the needs differ from state to state and within a state from district to district. When the government of Tamil Nadu introduced the midday meal scheme, it was dubbed as populist. Similarly, the employment guarantee scheme launched by the government of Maharashtra was criticized. The same schemes were later adopted by the government of India. 15वीं फाइनेंस कमीशन के सदर नशीन नंद किशोर सिंह ने कहा है कि तेलंगाना रियासत तेजी से तरक्की कर रही है। तेलंगाना के 4 रोज़ा दौरे के दौरान जोबली हॉल में वज़ीर आला और वज़रा और ओहदेदारों के साथ हुए जायजे इजलास के बाद खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि तेलंगाना के बहबूदी प्रोग्राम मुनफरिद हैं। इन्होंने कहा कि मिशन भगीरथ प्रोग्राम किसी और रियासत में नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी तेलंगाना दूसरे नंबर पर है। जीएसटी के मामले में भी तेलंगाना मुल्क में दीगर रियासतों के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। इन्होंने कहा कि इकामती स्कूल्स आबपाशी प्रोजेक्ट के प्रोग्रामों से मुस्तकबिल में इसके फ़वाद आवाम को हासिल होंगे। इन्होंने कहा कि मजमूई तरक्की और मनसूबाबंद प्रोग्रामों की अमलावरी के लिए रियासत की शरह पैदावार 30 से 40% होनी चाहिए, जबकि रियासत की शरह तरक्की 20% है। हालांकि ये तरक्की कौमी औसत से ज़्यादा है। कमीशन के सदर नशीन ने बताया कि हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेरचल, मलकाजगिरी और संगारेड्डी से 52% जीएसटी हासिल हो रही है। इन्होंने रियासत में मुतवाज़िन तरक्की पर जोर दिया और कहा कि 27 अजला में मुतवाज़िन तरक्की हुकूमत के लिए एक चैलेंज है। देही इलाकों में ज़्यादातर तरक्याती काम किए जाने चाहिए। नंद किशोर सिंह ने कहा कि रियासत तेलंगाना जिस तेज़ी से तरक्की कर रही है, इसको बरकरार रखना चाहिए ताकि जो प्रोग्राम्स रूबे अमल लाए जा रहे हैं, इसके फ़वाद आवाम को हासिल हो सके। इन्होंने बताया कि FRBM और फंड्स के दिगर अगराज के लिए इस्तेमाल के बारे में हुकूमत की तरफ से नुमाइंदगी की गई है। इस सिलसिले में कमीशन तफसीली जायजा लेने के बाद कतई फैसला करेगी। NK सिंह ने बताया कि वो अब तक 19 रियासतों का दौरा कर चुके हैं। साबिक वजीर और TRS के रुकन असम्बली हरीश राव ने कहा है कि इनको काबीना में शामिल न करने पर वो नाराज नहीं। इन्होंने सोशल मीडिया पर इनकी नाराजगी की खबरों को बेबुनियाद करार दिया। रुकन असम्बली हरीश राव ने नए वज़रा को मुबारकबाद दी और कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि नए वज़रा और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और अवाम की तवक्कुआत को पूरा करेंगे। उनका कहना था कि वज़ीर आला KCR ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है वो पार्टी के एक सिपाही की तरह जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। वज़ीर आला रियासत की तरक्की और अवाम के ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने पार्टी कारकुनों पर सोशल मीडिया पर जारी झूठे प्रोपेगेंडे का शिकार ना होने का मशवरा दिया। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। तारीखी चार मीनार का इलाका जहां हर दिन 2 से 2.5 हज़ार अफराद का हुजूम रहता है, 700 से ज़्यादा हॉकर्स और बंडियां इसके अतराफ मौजूद रहती हैं, मंगल के दिन कुछ मुख्तलिफ मनाजिर पेश कर रहा था। 15वें फाइनेंस कमीशन ने इस इलाके में बिलखुसूस पैदल राहरू प्रोजेक्ट का मुआयना किया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कमीशन के सदर नशीन और अरकान को इस प्रोजेक्ट के कदोकौल से वाकिफ करवाया गया। कमीशन के दौरे के मौके पर इस इलाके से तमाम हॉकर्स और बंडी रानों को हटा दिया गया। दुकानदारों से कहा गया कि वो ताकीर से दुकानात खोलें। इस तरह इस इलाके में कर्फ्यू जैसी सूरत हाल पैदा कर दी गई थी। कमीशन की आमद से कबल GHMC ने इस इलाके की सफाई में कोई कसर ना छोड़ी। ताहम सफाई मुआयने के दौरान पुलिस के एक आला ओहदेदार ने देखा कि पैदल राहरू प्रोजेक्ट की तख्ती निकल चुकी है और इसको एक डोरी के सहारे बांधा गया है। पुलिस के इस ओहदेदार ने GHMC के जोनल कमिश्नर को इस तख्ती की बदहाली से वाकिफ करवाया। चूंकि कमीशन के अरकान की आमद के लिए बहुत कम वक्त रह गया था, इसीलिए जोनल कमिश्नर ने एक मुकामी दुकानदार को तलब किया और उनसे कहा कि वो इस तख्ती पर चंद कीले लगा दे। बलदी अमले के बजाय मुकामी दुकानदार ने हथौड़ी से चंद कीले इस तख्ती पर लगाए। कमीशन के अरकान को तख्ती की तरफ ले जाया भी नहीं गया।
उनकी जबरदस्त आवभगत की गई। उनके लिए चार मीनार के फर्श पर कुर्सियां लगाई गईं और उनकी ईरानी चाय और उस्मानिया बिस्किट से तवज्जो की गई। कमिश्नर GHMC दाना किशोर ने प्रोजेक्ट से कमीशन को वाकिफ करवाया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन अंबर किशोर झा, दीगर सिविल और पुलिस ओहदेदार, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। कमीशन के अरकान ने चार मीनार के दामन में तस्वीर खिंचवाई। कमीशन के अरकान का काफिला चौमहल्ला पैलेस की सिमत से चार मीनार पहुंचा। पैदल राहरू प्रोजेक्ट के मायने के बाद फलकनुमा पैलेस रवाना हो गया, जहां उनके एजाज में एक पुरतकल्लुफ लंच का एहतमाम किया गया। टाउन प्लानिंग बलदिया के ओहदेदारों ने चंद्रायन गुट्टे में फुटपाथ पर कारोबार करने वालों के गैर मजाज कब्जेजात को बर्खास्त कर दिया। ACP टाउन प्लानिंग अब्दुल कादिर ने मीडिया को बताया कि उनकी टीम ने फुटपाथ के करीब 1 किलोमीटर इलाके में कार्रवाई करके छोटे ताजिरों को बर्खास्त कर दिया। इन्होंने बताया कि उनका अगला निशाना चंद्रायन गुट्टा चौराहा, बंडलागुड़ा, हाशिमाबाद और फलकनुमा के फुटपाथ हैं। इन्होंने बताया कि फुटपाथ पर कारोबार करने वालों की वजह से ट्रैफिक जाम होने की शिकायत की जा रही है। इन्होंने कहा कि सरकारी अराजी पर किए जाने वाले गैर मजाज कब्जे को भी जल्द बर्खास्त किया जाएगा। दरगाह हजरत सालार औलिया वाक़े हफीज पेट की 140 एकड़ कीमती वक्फ अराजी पर हो चुके और हो रहे नाजायज़ कब्जों को बर्खास्त करने के लिए चेयरमैन बोर्ड मोहम्मद सलीम से मुकामी जिम्मेदारों ने नुमाइंदगी की है। मुतवल्ली व सज्जादा नशीन के नुमाइंदे ने बताया कि तवील अरसे से वो इस वक्फ अराजी की हिफाजत के लिए मुसलसिल नुमाइंदगियां कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बोर्ड ने किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की। इन्होंने बताया कि बोर्ड की अदम कारकर्दगी से हौसला पाकर लैंड ग्रैबर्स 60 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर चुके हैं और फरोख्त कर चुके हैं। इन्होंने चेयरमैन वक्फ बोर्ड से इस सिलसिले में फौरी कार्रवाई करने की अपील की। तारनाका के इलाके में सड़क अबूर करने वाला एक शख्स ट्रक की टक्कर से बरसरे मौका हलाक हो गया, जबकि उनका बेटा इस हादसे में शदीद जख्मी हुआ। लालागुड़ा पुलिस एक केस दर्ज करके ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने मुतवफ़ी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जबकि जख्मी शख्स को इलाज के लिए लालागुड़ा हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया है। यूसुफगुड़ा के इलाके कृष्णकांत पार्क के करीब मोटरसाइकिल सवार RTC बस से टकराकर बरसरे मौका हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक मंगल के दिन 21 साल उमर अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि उनकी मोटरसाइकिल बेकाबू होकर एक RTC बस को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 21 साल उमर बरसरे मौका हलाक हुआ, जबकि उनका हकीकी भाई इस हादसे में शदीद जख्मी हुआ है। इस वाक़े में मोटरसाइकिल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। SR नगर पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जख्मी नौजवान को इलाज के लिए दवाखाने में शरीक किया गया। SR नगर पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। मेहदीपट्टनम बस स्टॉप के पास बस में सवार एक शख्स ने पॉकेट मारने वाले रहजन को बर वक्त पकड़कर इसे हुमायूं नगर पुलिस के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 19 साल नौजवान जी अप्पा मोइनाबाद जाने के लिए बस में सवार हुआ था कि मंगल नामी एक शख्स ने इसकी पॉकेट उड़ा ली, जिसे इत्तेफाक से अप्पा ने देख लिया। इसने मंगल को पकड़कर पॉकेट लेने की कोशिश की, लेकिन मंगल ने पैकेट को अपने एक दूसरे साथी को दे दिया, जिसे वो लेकर राह फरार इख्तियार हुआ। हुमायूं नगर पुलिस ने एक केस दर्ज करके मंगल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मंगल के साथी की तलाश शुरू कर रही है, लेकिन वो ताहाल नहीं पकड़ा गया है। पैकेट में 10,000 रुपये नकद रकम के अलावा ATM, आधार कार्ड के अलावा दूसरी दस्तावेजात मौजूद थीं। बालनगर आबकारी ओहदेदारों ने गांजे की मुंतकली और इसे फरोख्त करने के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक गिरफ्तार शुदा अफराद धूलपेट से गांजा खरीद कर इसे फतेह नगर ले जा रहे थे, जिसकी आबकारी पुलिस को पहले से ही खबर हो गई थी। इसने छापा मारकर 3.5 किलो गांजा,
एक ऑटो रिक्शा और 2 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली। पुलिस ने केस दर्ज करके मुलजिमीन को अदालती तहवील में दे दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। तेलंगाना की काबीना में 10 वज़ीरा शामिल, गवर्नर ने दिलाया हलफ, 5 नए चेहरे शामिल, केटीआर और हरीश राव शामिल नहीं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने और रियासत में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड्स दिलाने कमीशन सिफारिश करे, वज़ीर आला की नुमाइंदगी। रियासत की मुतवाज़िन तरक्की जरूरी, देही इलाकों को तरक्की दी जाए, तेलंगाना तेजी से तरक्की करने वाली रियासत, फाइनेंस कमीशन के सदरनशीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। काबीना में जगह ना मिलने पर हर्ष नाराज नहीं, टीआरएस के सिपाही के तौर पर काम करेंगे, सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा बेबुनियाद। और मुख्तलिफ सड़क हादसात में 2 अफराद बरसरे मौका हलाक, 2 शदीद जख्मी। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।